ओके, स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। ठीक। यस सर। लास्ट टाइम में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉइंट फोर्स, एंड देन I was telling you about flotation. So basically I had told you that things which are denser than the liquid surrounding them, and this could be in air also. Air is also a kind of a liquid, a fluid, and so that then when we talk about things like helium balloons and all, a helium balloon being less dense than the air around it will sort of float up to the surface. Naturally there is no surface to the air or the atmosphere, so it should ideally keep rising, but eventually it hits the ceiling and stops there. But if you just left it outside, you could make it go all the way. अब दूसरा उसमें फैक्टर ये है कि एयर का डेंसिटी ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो जाता है एक्चुअल एटमॉस्फेयर का. सो एक पॉइंट पे उसका डेंसिटी हीलियम की डेंसिटी के बराबर हो जाता है, एट विच पॉइंट इट इज एग्जैक्टली helium inside, helium outside kind of thing. And then it can't rise any further because the air above that point will be even less dense than helium. So helium would be heavier compared to that air. So there is an upper limit to helium balloons where they can go. But that's the main point.
Will it burst due to pressure difference? Then no, not really. I mean, the elasticity of rubber is actually quite high. Rubber is a surprisingly strong material, even though it doesn't feel like it. It's for how much weight there is in the balloon. I mean, for rubber that is usually there in the balloon, it provides a lot of strength. It provides quite a bit of strength and can sustain a lot, a significant pressure difference. Of course, the idea that you can blow up a balloon to that size with so much stretching means that usually it can take a lot of, and it might or might not burst. Bursting or breaking or sort of fracturing is actually not something that can be described by laws of physics. It's really usually to do with some or the other form of imperfection in the structure, in the molecular structure or the atomic structure or the lattice or whatever, right? So it's not simply a matter of the pressure difference being too much. Usually that's not the case. So but coming back to floating and sinking, things that are lighter than the fluid surrounding them or less dense than the fluid surrounding them will float up to the top. Things that are denser than the fluid will sink, and they will continue sinking till they find somewhere where they can stop. So usually the bottom of the container or the bottom of the ocean or wherever, right, where the difference in weight and buoyant force can be then helped by the normal force, equilibrium milane ke liye usko. But things that will float will come up to the surface, and then what proportion of the thing will be outside and inside is actually the ratio of the density of the thing to the density of the fluid in which it is floating. ये हमने last time deduce किया था कि एक object जो float कर रहा है surface पे, तो उसकी जो volume submerged है, volume submerged by volume total का जो रेशियो है वो वही रेशियो है जो इसका डेंसिटी और सराउंडिंग लिक्विड का डेंसिटी का रेशियो है. So if this is 1/3 as dense as the liquid, it only needs to be 1/3 under the liquid to be able to generate enough buoyant force to balance its entire weight, right? This is V sub. ठीक है? And you can imagine that you had like a controller. Let's say मेरे पास रो ऑब्जेक्ट पे कंट्रोलर होता, बाकी सब फिक्स्ड है, रो ऑब्जेक्ट पे कंट्रोलर होता. तो यू कैन इमेजिन कि अगर रो ऑब्जेक्ट पहले मैंने जीरो किया होता तो ऑलमोस्ट पूरा बाहर होता, पिंग पोंग बॉल या थर्मोकॉल की तरह. उसकी डेंसिटी इतनी कम होती कि उसको हार्डली एनी प्रोपोर्शन सबमर्ज करना पड़ता टू डिराइव द रिक्विजिट buoyant force. Then I would turn the controller, increasing the density of this object. It would sink deeper and deeper. It would not sink, it would still be floating at the surface. But as I increase the density, a bigger and bigger proportion of it would be under the surface of the water. Till at some point, the density of the object would hit exactly the density of the liquid, at which it would be just here, just submerged, but still floating, just about sort of hanging. The moment I turn that controller anywhere beyond that point, the moment the density of the object goes above the density of the liquid, it would then drop and would continue going till it hits some kind of a surface, right? तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कवर किया था. अच्छा, अब तुम लोगों ने SHM कर लिया है कुछ? Do you guys know how to find the time period of a certain oscillation? सर, we did that in SHM. अच्छा, ओके, तो ठीक है. तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिंपली दिस कॉन्सेप्ट. लेट्स से एक सिलेंडर है जिसका टोटल लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. वो एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और लिक्विड का डेंसिटी जो है वो रो है और सिलेंडर का जो डेंसिटी है वो लेट्स से 2 ρ/3 है, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम में चिल करके फ्लोट कर रहा है, उधर ही फ्लोट करता रहेगा. अब इफ आई प्रेस इट अ लिटिल डाउन एंड देन लेट गो, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. यूजुअल ग्रेविटी नीचे है,
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, आंसर इसका देना चैट पे एंड सेंड इट टू पोस्ट। पोस्ट पे भेजो आंसर्स, पोस्ट पे मत भेजो। हाँ ठीक है, आइविन ठीक है, अर्नव ठीक है। मिराज तुम्हारा जी और एल उल्टा हो गया आई थिंक। क्षितिज ठीक है। ठीक है भव्या, कोई बात नहीं, कर लो क्विकली, मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर मैं एक सिमिलर प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम वो नहीं किया होगा। एकांश आई थिंक ये करेक्ट नहीं होगा, चेक कर एक बार। फरीजाद करेक्ट है। स्नेह करेक्ट है। पिनाक करेक्ट है। चिन्मय करेक्ट है। सॉल्व कर लेते हैं। या जिन लोगों ने कर लिया उनको मैं दूसरा एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ यहाँ पे, सिमिलर प्रॉब्लम स्लाइटली डिफरेंट। This is a little different from this in that you need an approximation here. तुमने एसएचएम में पढ़ा होगा कि कुछ एसएचएम परफेक्टली एसएचएम होते हैं जहाँ पे फोर्स completely proportional to displacement होता है, no matter how much you displace it, and some other SHMs are only approximately SHM. In that, if the displacement is small, then it is an SHM. SHM, right? So this is that kind of thing. Take the appropriate approximation here. एकांश भी करेक्ट है, श्रेया करेक्ट नहीं है, हर्षित करेक्ट है, पारिन तुम्हारा न्यूमेरिकल फैक्टर अंदर जो है वो उल्टा हो गया।
नहीं श्रेया करेक्ट नहीं है। वह एल भी आएगा और तो भी उल्टा है न्यूमेरिकल फैक्टर। देवयानी अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर सही नहीं है रूट के अंदर। So we always consider, okay, understood, sir, sorry. खुने करेक्ट है। देवयानी हाँ जी मिसिंग है अभी, करेक्ट है अदरवाइज। अनवय करेक्ट है अभी। इन जनरल डायमेंशनल चेक कर लिया करो अपने आंसर की क्विकली। पेंडुलम का तुम्हें पता रहेगा 2 पाई रूट L/G होता है, यानी डायमेंशनली टाइम आने के लिए रूट के अंदर L ऊपर और G नीचे होना चाहिए। अर्नव सेकंड वाले का आंसर तेरा ये है ना, सेकंड वाला लेट मी चेक। ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो, एक तो तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम में इसका 2/3 L अंदर होना चाहिए और 1/3 L बाहर होना चाहिए, तो तुम फोर्स बैलेंस लिख सकते हो। फिर तुम एडिशनली इसको x से डिस्प्लेस करो और जो एक्स्ट्रा फोर्स आ गया रिस्टोरिंग जो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जब तुम इसको अंदर पुश करोगे तो इसका वेट तो फिक्स रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसका जो बॉइंट फोर्स है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम सबमर्ज बढ़ जाएगा। तो नेट फोर्स चिन्मय होस्ट पे भेज, होस्ट पे, तो नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर वो फोर्स हम शो कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है तो एसएचएम हो जाएगा, राइट। तो इनफैक्ट अगर तुम लोगों ने एसएचएम में ये चीज पढ़ा होगा कि वैसे तो तुम जब इसको डिस्प्लेस करोगे तो फिर से इसका F=ma लिखोगे और उसमें तुम इसका वेट भी लिखोगे और बॉइंट फोर्स भी लिखोगे। अब इस केस में बॉइंट फोर्स विल बी बिगर देन वेट, देयरफॉर B माइनस W विल प्रोवाइड द ma। बट ऑल्सो यू कंसिडर द फैक्ट कि जब ये एडिशनली जितना नीचे गया तो उससे जो एक्स्ट्रा बॉयंसी आया होगा वही केवल रिमेनिंग फोर्स होगा, क्योंकि जो जो ऑलरेडी जितना पार्ट सबमर्ज्ड है उसका बॉयंसी तो वेट के साथ काउंटर बैलेंस हो ही रहा है। तो मतलब जब मैंने इसको फर्दर एक्स पुश कर दिया नीचे, तो अब पानी का सरफेस यहाँ पर आ गया है और पहले ये इक्विलिब्रियम में यहाँ तक था, मतलब एक्स और नीचे चला गया है। तो जो एडिशनल बॉयंसी डिराइव होगी वो केवल इतने सबमर्ज्ड वॉल्यूम के कारण आती होगी। एडिशनल बॉयंसी, टोटल बॉयंसी एक्चुअली पूरे वॉल्यूम सबमर्ज के कारण है, लेकिन उसमें इतने वॉल्यूम सबमर्ज के कारण जो बॉयंसी है वो इसके वेट के बराबर है, तो वो तो कैंसिल हो गया। हाँ चिन्मय करेक्ट है तेरा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर मैं तुम लोग का वेरीफाई करता हूँ, अभी एक सेकंड रुक जाओ। तो देयरफॉर जो इस पे नेट फोर्स है, जो एक्सेस बॉयंसी है, वो कितना है, लिक्विड का डेंसिटी इनटू इसका एडिशनल वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। और यही एम ए होना चाहिए, एम ए। देयरफॉर ए इक्वल्स टू रो कट गया, ए कट गया, और ये आ गया तुम्हारे पास 3G/2L टाइम्स एक्स
and therefore this must be omega square. हो गया टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है, सबको समझे? सेकेंड पार्ट का आंसर मैं बताता हूँ तुम लोगों को. लेट मी जस्ट सॉल्व इट फॉर माई सेल्फ. हाँ ठीक है, टेक योर टाइम. आई विल गिव यू a couple more minutes for this. किस किस का आंसर करेक्ट है? लेट्स सी. अभिजीत करेक्ट है, तेजस करेक्ट है, परिजात करेक्ट है, अर्नव करेक्ट नहीं है तेरा सेकंड का आंसर, एकांश करेक्ट है सेकंड का आंसर, हर्षित करेक्ट नहीं है सेकंड का आंसर, चिन्मय करेक्ट है, A56 चिन्मय सेकंड का आंसर करेक्ट है. इसने सेकंड का आंसर दिया था तूने, उसमें एल कैसे आ गया? वो आर में आएगा. क्षितिज सेकंड का आंसर करेक्ट है, परिजात सेकंड का आंसर करेक्ट है, ऑलरेडी सेड आई थिंक. श्रिया एस सेकंड का आंसर करेक्ट है. पिनाक सेकंड का आंसर तेरा न्यूमेरिकल फैक्टर उल्टा हो गया है. शरीन करेक्ट नहीं है, फिर से देखो. तुमने न्यूमेरिकल नंबर्स कैंसिलिंग करने में गलती कर दिया है. मिराज करेक्ट नहीं है. पिनाक करेक्ट है सेकंड का आंसर. श्रेया न्यूमेरिकल फैक्टर उल्टा हो गया है. नहीं नहीं, एक सेकंड, वेट 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 गाइस, मैंने ही उल्टा कर दिया है. श्रेया करेक्ट है, पिनाक तेरा उल्टा हो गया है. देवयानी करेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल फैक्टर गलत है. तेजस करेक्ट है, अभिजीत करेक्ट है, परिजात करेक्ट है, एकांश करेक्ट है, चिन्मय करेक्ट है. चिन्मय तेरा आंसर में अंदर उल्टा हो गया है. अगेन डायमेंशनली देखो, टाइम नहीं है वो, आर ऊपर और जी नीचे होना चाहिए ना. B57. पिनाक तुम्हारा भी जी और आर उल्टा हो गया. आर ऊपर आएगा, लेंथ ऊपर होती है, जी नीचे होता है टाइम के लिए. और पिनाक तुम्हारा न्यूमेरिकल भी फैक्टर गड़बड़ है, आपस में गलत मल्टीप्लिकेशन है उसका. सिद्धार्थ करेक्ट आंसर है, A91. अर्नव गलत आंसर है. रिदम करेक्ट आंसर है. अर्नव गलत है अभी भी, कैंसिलिंग में एरर हो गया तेरा.
मेरा आज गलत है, न्यूमेरिकल फैक्टर गलत है, कैंसिलिंग में कुछ एरर हो गई है। ओम करेक्ट है, A70। तनय करेक्ट है। अर्नव अभी भी गलत है, पाई नहीं बचेगा देख। अवनीश करेक्ट नहीं, अवनीश न्यूमेरिकल फैक्टर मिसिंग है अंदर एक। दिव्यानी करेक्ट आंसर है, अभी पुणे करेक्ट आंसर है। आइवन करेक्ट आंसर है। आर्यन करेक्ट है, A52 आर्यन। अर्नव नहीं, करेक्ट नहीं है। डायमेंशनली टाइम नहीं है, R² नहीं आएगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसमें क्या है, पहले वो 50 हाफ डेंसिटी का है, तो एग्जैक्टली हाफ पे फ्लोट कर रहा होगा, आधा अंदर आधा बाहर। अब इसको जब फर्दर प्रेस करेंगे बाय एक्स इनसाइड, तो जो एडिशनल इसका वॉल्यूम चला जाएगा अंदर। मान लो मैंने इसको एक्स से नीचे प्रेस कर दिया, तो एक सेंस में पानी एक्स ऊपर आ गया होगा इक्विलिब्रियम के रिलेटिव। तो जो एडिशनल वॉल्यूम अंदर चली गई है, जिससे एडिशनल बॉयंसी आएगा, एक्सेस बॉयंसी, वो ये वाला वॉल्यूम है। एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक सिलेंड्रिकल डिस्क नहीं है। अगर एक्स बड़ा है तो ये पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअली ऐसे कर्वेचर है, तो इसकी वॉल्यूम जो है टेक्निकली इंटीग्रेट होनी चाहिए फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन बोला है, हम ये कह सकते हैं कि ये चीज
is approximately the same as EHEs with straight vertical walls. तुम लोग समझ गए? For a small x, this will not make that much of a difference. हाँ, प्रांजलि करेक्ट आंसर है. मिराज 2 का फैक्टर मिसिंग है. भव्य गलत आंसर है. Therefore, जो एक्सेस buoyancy आएगा वो कितना आएगा? लिक्विड का डेंसिटी इनटू जो एडिशनल वॉल्यूम नीचे चला गया है. कितना वॉल्यूम नीचे चला गया है? पाई आर स्क्वायर एक्स. ये वाला वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स. ये तभी कह पा रहे हैं अगर एक्स स्मॉल है तो. इंटू जी, दिस इक्वल्स मास which is density times volume times the acceleration. Thus, therefore, acceleration equals to 3g by 2r x. So, therefore, this is omega square. समझा सबको ये अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया मैंने इसमें? All right. अब आगे फ्लोटिंग और सिंकिंग जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं. करेक्ट तेजस. वैसे कन्वेंशनली स्पीकिंग देयर इज अ माइनस. इट इज एक्चुअली a equals minus omega square x. But in physics in general, if we know the direction, we can skip the sign. The sign only tells the direction. I know that the acceleration is going to be upwards and x is going to be downwards. I will push it down, it will accelerate upwards. That's all the minus sign stands for. So if I keep that in my mind, I don't need the minus sign. Okay, so there is a category of problems related to floating and sinking which are quite interesting and they have a history also. वो ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर मान लो पानी में आइस फ्लोट कर रहा है, ठीक है, एक बीकर में वाटर है जिसमें आइस फ्लोट कर रही है. So ice is floating in the water. Right? मैंने क्या किया, जहां पे पानी का लेवल है वहां पे मैंने बीकर पे एक मार्क लगा दिया. ये आइस है. अब एक क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि जब ये आइस फाइनली पूरा मेल्ट होकर पानी बन जाएगा एंड द बीकर विल हैव ओनली वाटर इन इट, where will that new level of water be relative to the old level of water? Will it be up, will it be down, or will it be in the same place? एक डिफरेंट सवाल ये है कि अगर केवल पानी होता और उसका लेवल मार्क किया होता और फिर उसमें आइस डालते तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वो आइस उसमें जाएगा तो आइस को अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाना पड़ेगा, जितना भी वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करने वाला है. लेकिन ऑलरेडी अगर आइस उसमें फ्लोट कर रहा है तो अब क्या होने वाला है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपली ये है ओम कि अगर पानी है केवल इनिशियली, आइस नहीं है, और मैं उसमें अब एडिशनली आइस डाल दूं तो नेचुरली पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए. या मान लो पानी ऊपर तक भरा हुआ है एकदम टॉप तक और आइस डाल देंगे तो स्पिल कर जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक्स्ट्रा चीज उसी वॉल्यूम में घुसने का कोशिश करेगा तो इट विल हैव टू रिप्लेस द वाटर. The current question that we are discussing right now is that ice cube is already in the water and that level of water has been marked with the ice in it, has been marked. Now if you give it enough time, the ice will melt, become water. Now you will have water in the beaker. The question is, once all the ice has melted, where is the new level of water relative to this old mark? And the answer to that is are basically the same material in different states. This is not always true. Like if it was somehow a block of, let's say,
copper in water and that melted, then you would have a different answer, right? तो इसको मैं एक मैथमेटिकल तरीके से बताता हूँ सिंबल्स यूज करके, और एक लॉजिक से बताता हूँ। दोनों ही समझना जरूरी है। सिंबल से तुम कर सकते हो, इससे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इसके बाद हम करेंगे, वो सिंबॉलिकली भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम लॉजिकली समझ जाओगे तो देन यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस क्वाइट स्ट्रेट इन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। ऐसे सोचो कि मैं इसमें पहले सारे सिंबल्स ले लेता हूँ, ठीक है? तो जो आइस है उसकी डेंसिटी है रो आइस और उसकी वॉल्यूम है वी आइस, पूरे आइस क्यूब की। पानी की डेंसिटी है रो वाटर और आइस